Phoenix. So today we will going to discuss about the another type of division. As in the previous video we have discussed about the mitosis. So today we will going to discuss about the meiosis cell division. So let us proceed and see what happened to this. So in meiosis cell division, as we know, in mitosis a cell will going to have two daughter cells. So in meiosis it is just the opposite, or you can say that it is just the doubled form of mitosis cell division, because in mitosis occur two times. Yeah, meiosis is actually a mitosis form which occur twice. Yes, very important to note that in this cell division the mitosis cell division occurred twice. As we know, after mitosis cell division a mother cell will going to give rise to two daughter cells. So if it is a mitosis 1, if it is a mitosis 2, then it will also going to give rise to 2, and as a result there will be 4 daughter cells. So because at the last of meiosis a mother cell will going to give rise to 4 daughter cell, that's why we are knowing as its meiosis. So the names differ here because there is production of 4 daughter cells, or you can say that it is a doubled form of mitosis, because here mitosis 1, after mitosis 1 there will be 2, and after meiosis 1 there will be 2, and the 2 gives 4 daughter cells. We will discuss it afterwards how it is going to happen. Let us proceed. I hope it is clear. So let me give you the definition once more. Meiosis is a kind of cell division, or meiosis is a kind of cell division in which a mother cell will going to give rise to 4 cell or 4 daughter cell. It is very important to note, this is a kind of cell division in which after the cell division there is formation of 4 daughter cell. Meo, mother, cis, 4 cis. After the cell division a cell will going to give rise to 4 daughter cell. Let us proceed. History. The term meiosis was coined by Farmer and Morey in 1904. The term was coined by Farmer and Morey in 1904. This is the normal history of that, and definition. See, definition is very important. So here the definition: a kind of cell division in which a cell undergoes two successive division. You can see, I have told you further also, here two successive division will going to take place, and after the two successive division there will be the formation of 4 daughter cell. That means a cell will going to have division, and after the division there will be formation of 4 daughter cell. So it is a kind of cell division in which a cell undergoes to form 4 daughter cells, and each having the half number of chromosomes. It is very important to know that here in the mitosis types of cell division the chromosome number become equal, but in meiosis types of cell division the numbers of chromosome reduces to half. That means if a mother cell is 2n, so at the last the daughter cells or the 4 cells which will going to produce will have the half number of chromosomes. That means 2n become the n and n. After that, I hope it is clear. See how it is going to happen. There will be a diploid cell 2n. At the first division itself, the first division is known as the reductional division because the numbers of chromosomes is becoming half. It is the first meiotic division. Here you can see a diploid cell has become a haploid. That means the 2n has become n and n. Two different types of cell. And after that what will going to happen? This haploid will again give rise to n and n. That means it is an equational division. Here n, and when the 2 daughter cell will going to form, there that will also be n. So the meiosis will going to happen into 2 types of division. That means the reductional and the equational cell division. After the reductional cell division, the 2n become haploid, and after that the haploid will going to give rise to 2 daughter cell, and that will be equal as their mother cells.
This is the introductory part. I hope it is very clear to you. Now we can move toward the significance of mitosis, cell division. First of all, reproduction, very important. This is the cell. As we know that in mitosis, I have told you that mitosis is a kind of cell division which occurs in somatic cell. That means all the other cells of the body other than the reproductive cells. You can say that the meiosis cell division occurs in the reproductive cell. What does this reproductive cell? This reproductive cell is also known as gamete, or you can say that it is a sex cell that take part in the process of reproduction. That means which will going to take part in the process of fertilization. As we know that we have studied in the junior sections also, in the previous classes also, that when a male gamete will going to fuse with the female gamete, it will going to form a zygote. That means this process, these are the cells, they are the sex cells. As we know that if we are a human, we have 22 autochromosomes and one pair is a sex chromosome or sex cells. 20 in a cell, there will be 22 autochromosome and one will be the sex chromosomes. That means one of the cell. And do remember one thing, these are the reproductive cells. They will going to produce the reproductive organ itself. If it will be a plant, in them male produce the pollen grain and female produce the ova. This is the plant sex cells, male sex cells and female sex cells. And if we will going to compare in the animal, so male sex cell will be sperm and female sex cell will be ova. So in order to produce the sperm and ova, the meiosis cell division take place. Or in plant, in order to produce the pollen grain and the ova or the egg or the ovule, don't say it ovule, ova or egg, this mitosis division will going to take place. See, skip this part. When I will going to explain you further about the second chapter, the chromosomes, I will give you the detail of that. So if you, I think you will going to get confused about that. Then go to the reproduction part again. Reproduction, that means the significance of meiosis. It will help in the reproductive cell formation or gamete or sex cells formation. That means if it is a male plant, then it produces the pollen grain, and in the female sex it produces the ova. In an animal, it will going to produce in the form of sperm and it will going to produce in the form of ova. So they are produced by the meiosis cell division will going to occur in reproductive organ of an organism. Reproductive organ of an organism. I hope it is clear. The first significance, it will going to help in the process of reproduction or fertilization. Second, maintenance of chromosome number, very important. As I have told you, it maintains the numbers of chromosome constant. For example, see, a zygote is a 2n structure. If the male will not be, if the male will be 2n and the female will be 2n, it becomes 4n. That will be wrong. That will be, the zygote will not going to produce like that. That's why in the process of meiosis, the number is getting half. The male sperm is a N cell, female ova is a N, and when it get produced, it become 2n. So in order to maintain the chromosome number equal, in order to maintain the chromosome number equal in zygote, this division is going to take place, and after the division, the male sperm become N and the female become ova and become N, and they will going to produce the zygote. After that, variation.
बिकॉज ऑफ दिस मिंगलिंग ऑल्सो ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएशंस कम, वेरिएशंस जैसे वेरिएशन इन द सेंस आप बोल सकते हो कि आप अपने मदर और फादर से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हो, यू जस्ट लुक डिफरेंट फ्रॉम योर मदर एंड फादर, दो आप लोग उसके उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉज करते हो देन ऑल्सो आप लोग बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हो, ये होता है वेरिएशन। दैट मीन्स वी आर वेराइड फॉर्म, वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर मदर एंड फादर। और इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर मदर और फादर के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, या मदर और फादर के बाद ही एक चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है, और वो चाइल्ड में हाफ मदर के कैरेक्टरिस्टिक हाफ फादर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इस वजह से वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और यही क्या कहलाता है? वेरिएशन। इवोल्यूशन, हम जैसे पहले थे, वी वेयर लाइक in the when you see in the history we were different and now we have become a modernized human। तो ये है इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन कहाँ से आता है? हमारे बॉडी में या हम में यू कैन से दैट डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि मदर फादर की हाइट बहुत कम होती है और बेबी की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये एक प्रकार का इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? वो हिस्ट्री चेंज होता है, मतलब हमें जो हमारे पेरेंट्स लोग से बेटर क्वालिटी आती है, वो बेटर क्वालिटी क्या करती है कि न्यू ह्यूमन बीइंग में न्यू कैरेक्टरिस्टिक को क्या करती है? फॉर्म करती है। ये होता है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन बेसिकली इवोल्यूशन जो होता है वो आज या कल नहीं आता है, इवोल्यूशन के लिए हिस्ट्री चाहिए। मतलब पहले सोचो, पहले वी ह्यूमंस वे लाइक walking like animals, we were like animals but now we have become a modernized human। तो ये इवोल्यूशन है। ये इवोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? तो बार बार मियोसिस हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, और इसी वेरिएशन के वजह से क्या होता है? बेसिकली आप लोगों का इवोल्यूशन आता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सिग्निफिकेंस लेट मी टेल यू वंस मोर। पहला सिग्निफिकेंस होता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन, ये किसी भी मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, या अगर प्लांट हो तो पॉलन के प्रोडक्शन के लिए, फीमेल में एग के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मियोसिस जो होता है बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं? मेल गमीट को या रिप्रोडक्टिव सेल्स को या फीमेल गमीट और रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब मिंगल होंगे, अगर ये हाफ नहीं होंगे तो ये डबल हो जाएंगे। और किसी भी ह्यूमन है, जैसा हम लोग को पता है कि हम में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और अगर पेयर में देखा जाए 23 पेयर्स होते हैं। दैट मीन्स ये पेयर है। ये किसके पेयर है? 46 के पेयर्स है, यानी 23 टोटल पेयर्स बनाते हैं। 23 + 23 ये क्या हो जाते हैं? 46। तो अगर ये 2n ना रह के ये अगर 4n हो जाएगा तो ये नंबर जस्ट डबल हो जाएगा। तो ह्यूमन का वो सारा क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, और ये जो ह्यूमंस है वो म्यूटेट होकर पैदा होगा। मतलब वो ह्यूमंस में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे हम लोग में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वो 23 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 23 का पेयर ही होना ज़रूरी है और 46 का नंबर होना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है आप लोग का वेरिएशन में। जैसे मैं बताया कि कोई भी जो बेबी होता है वो पैर जैसे नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करता है? आप लोग का वेरिएशन लेके आता है। एंड द इवोल्यूशन। सो दिस इज आवर सिग्निफिकेंस पार्ट। वी जस्ट मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्टेजेस ऑफ मियोसिस डिवीजन। देखिए आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोगों को ये स्टेजेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब यू हैव टू स्किप द स्टेजेस। देन ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज आप लोग जो 11th में इसी का इलेबोरेटेड फॉर्म पढ़ने वाले। इफ यू विल गोइंग टू टेक बायो यू विल गोइंग टू लर्न इन द हायर सेक्शन अबाउट दिस। और आप लोगों के बुक में भी क्लियरली आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया गया है, तो आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो जो स्टेजेस ऑफ मियोसिस होता है वो बेसिकली 2 सक्सेसिव डिवीजन होता है। आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। जो स्टेजेस होते हैं मियोसिस का 2 सक्सेसिव डिवीजन में होता है। मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को कि 2 सक्सेसिव डिवीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होगा मियोसिस फर्स्ट, जैसे मैं तुम लोग को बताई थी कि माइटोसिस 1 एंड माइटोसिस 2 वैसे ही होता है। तो मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस एंटर करता है।
साइटोकाइनेसिस एंटर करता है, बट जो सेल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड ना होके वो क्या हो जाता है आप लोगों का सेकेंड मियोसिस पार्ट में एंटर कर देता है। हाँ मतलब जो सेल नया बनता है वो डिवाइड होने के बजाय वो क्या करेगा, नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, वो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। जब मैं डायग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी तो आई विल गिव यू डिटेल। जस्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि जो स्टेजेस ऑफ मियोसिस होता है वो 2 सक्सेसिव डिवीजन में होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और आप लोगों का जो मियोसिस 2 है अगेन क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 एंटर करेगा। उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस एंटर करके क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चलो लेट वी प्रोसीड टू दी फर्स्ट। जैसे बाकी सेल्स में होता है वैसे ही होगा, बट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल डिवीजन का। मियोसिस फर्स्ट बेसिकली क्रॉसिंग ओवर फेज होता है। यहाँ पर सेल डिवीजन से अपन को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। किसका क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम का बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, मियोसिस 2 एंटर करेगा। और मियोसिस 2 एंटर करने के बाद बेसिकली क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। यानी मियोसिस 1 का सेल डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मियोसिस 1 में क्या होता है, सेल्स जो होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। और वो चेंजेस के बाद क्योंकि हम लोग को क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ करना है, तो क्रोमोसोम का नंबर को हाफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। देखो सबसे पहला इंटरफेज है। इंटरफेज वैसा ही रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्रोमोसोम को दो कलर में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। तुम लोग को पता है ये क्रोमैटिक नेटवर्क है। मैंने क्रोमैटिक नेटवर्क को दो कलर में डिवाइड किया, वन ब्लू वन पिंक। देखो ये जो है ये इसलिए शो किया है क्योंकि ये जो बेसिकली ब्लू कलर है आप लोगों का, ये मैंने मेल ले लिया है और ये मैंने फीमेल ले लिया। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम से बने हैं। और डिप्लॉइड क्रोमोसोम वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पहला वीडियो देखा होगा तभी समझ में आ रहा होगा, पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो मेल और फीमेल का पार्ट, तो मान लो ये मेल है और ये फीमेल है, हम में दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट वो हम लोग दोनों क्रोमोसोम को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग क्या करेंगे, एक ही क्रोमोसोम को लेके आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल है, ये इंटरफेज है। जैसे ही हम लोग तो ये मेल है और ये फीमेल है, तो यहाँ पर प्रोफेज 1 में आप लोग देख सकते हो कि एज वी नो कि इन क्रोमैटिक नेटवर्क पूरी तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए हैं। सेम जैसे प्रोफेज 1 में होता है, जैसे हमने माइटोसिस सेल डिवीजन में पढ़ा था, सेम चीज़ होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट बताएंगे कहाँ पर डिफरेंस होने वाला है। तो कैन सी क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो चुके हैं, मेल डिफरेंट हो गया है और फीमेल डिफरेंट हो गया। ये डाइवैलेंट कहलाते हैं, यानी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। यू कैन सी यहाँ पर जो आप लोगों का सेंट्रोजोम का सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट हो गया। यानी प्रोफेज एंड तक ये क्या हो जाएगा, पूरी अपने अपोजिट पोल में मूव हो जाएगा। न्यूक्लियोलस यहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। न्यूक्लियोलस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया है। और ये जो सेंट्रियोल है ये अपने अपोजिट पोल में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोफेज के एंड तक ये अपने अपोजिट पोल में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से मूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मेटाफेज एंटर करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मेटाफेज 1 जो होता है बेसिकली ये इसमें इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर जो मेटाफेज 1 है, जो मियोसिस सेल डिवीजन का मेटाफेज 1 है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड होते हैं वो एक दूसरे के इंटैक्ट में आते हैं और इंटैक्ट में आके वो एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये है अपना क्रॉसिंग ओवर, मतलब ये इन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अटैच हो जाएंगे और इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या होगा, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है और हम में 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी दोनों क्रोमोसोम को हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मेल का और फीमेल का अलग अलग ना हो जाए। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने थोड़ा सा मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीमेल में और फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक को मेल में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र किया है। इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल
मेल का फीमेल में और फीमेल का मेल में क्या होता है, आप लोगों का ट्रांसफ़र होता है मेटाफेज 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नया सेल बनेगा वो हम लोग के पास एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें मेल और फीमेल का पार्ट होगा, क्योंकि अगर ये हाफ हो जाएगा तो या तो मेल का ही पार्ट आएगा या तो फीमेल का ही पार्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मेल और फीमेल को अलग कर दिया है। यहाँ पर हमने क्रॉसिंग ओवर करवा दिया है। सी, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब एनाफेज एंटर करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। जैसे कि एनाफेज में हमने को पता था कि सिस्टर जो क्रोमैटिड होता है वो बीच से टूटता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर पूरी तरह से वो क्रोमोसोम क्या है, एज इट इज़ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, यानी कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है यहाँ पर। बट यू कैन सी द चेंजेस कि ब्लू में थोड़ा पिंक आ गया है और पिंक में थोड़ा ब्लू। दैट मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। जब हम टीलोफेज एंटर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टीलोफेज, यू कैन सी यहाँ पर डिवीजन हुआ है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, पहली बात तो एनाफेज में अपने ऑपोजिट पोल में मूव हो गए हैं। ऑपोजिट पोल में मूव होने के बाद यहाँ पर सेल्स के अंदर यू कैन सी 2 डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा माइटोसिस में बेसिकली नहीं होता है। माइटोसिस में क्या होगा, आप लोगों का सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का 2 अलग अलग सेल बनेंगे। बट यहाँ पर देखो 2 अलग अलग सेल बन तो रहे हैं, बट ये 2 अलग अलग सेल क्या होंगे, आप लोगों के सेल के अंदर ही क्या करेंगे, वापस वो क्या करेंगे, प्रोफेज एंटर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सेल डिवीजन एंटर नहीं करता है, यानी टीलोफेज यहाँ पर साइटोकाइनेसिस एंटर करके 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होता, जबकि टीलोफेज यहाँ पर क्या करेगा, प्रोफेज 1 में क्या करेगा, एंटर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, प्रोफेज 1। अब देखो, पिछले बार ऐसा था कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम था कि क्या होता है प्रोफेज, क्या होता है टीलोफेज। तो मैं यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जो प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होता है, यानी मियोसिस 2 जो होता है, ये बेसिकली बोल सकते हो कि ये एक प्रकार का माइटोसिस सेल डिवीजन ही है। मियोसिस फर्स्ट को ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में जो है वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, उसको हम लोग माइटोसिस नहीं बोल सकते। जबकि मियोसिस को हम लोग माइटोसिस बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेज वैसा ही होने वाला है। सी, यहाँ पर क्या होगा, रफ डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया जा रहा है सेम, बट यहाँ पर याद रखना चाहिए क्योंकि टीलोफेज के बाद एंटर किया है तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियस है। जैसे कि टीलोफेज में मैंने बताया था कि साइटोकाइनेसिस एंटर करके वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, तो प्रोफेज के अंदर अपन के पास 2 अलग अलग न्यूक्लियस है। सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर, क्रोमोसोम जो होंगे वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट होंगे, यानी क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में ही रहेंगे। न्यूक्लियोलस, क्योंकि टीलोफेज एंटर कर चुका था तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया था अपन के पास, और कहीं ना कहीं क्रोमैटिड नेटवर्क भी वापस आ गया था, तो क्रोमैटिड नेटवर्क जो है वो क्रोमोसोम में बन जाएगा। न्यूक्लियोलस यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो भी वापस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो 2 न्यूक्लियस है वे वापस अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, आप लोगों का सेल डिवीजन एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर एक सेंट्रोमियर रहेगा, ये भी अपने यह बीच से कट टूटेगा और ये भी अपने ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट करेगा। देन अगेन ये मेटाफेज एंटर करेगा। मेटाफेज में क्या होगा, अगेन जो सेल रहेगा, क्योंकि अभी ये टूटा नहीं है, तो ये जो क्रोमोसोम है वो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आप लोगों का स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर देगा। सेंट्रियोल यहाँ पर ऑपोजिट पोल में पूरी तरह से मूव कर लेंगे। यहाँ पर भी डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल हुआ है। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो वापस क्या हो जाएंगे, एक इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे। जो नया क्रोमोसोम बना था वो क्या करेगा, एक इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। आई एम मेकिंग अ वेरी रफ डायग्राम। इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन किया, जैसे हम लोग को पता है कि मेटाफेज जो होता है वो बेसिकली अपने इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट के लिए जाना जाता है। थर्ड एनाफेज आएगा। अगेन क्या होगा, पूरा सेम चल रहा है, बट याद रखना कि टीलोफेज के बाद 2 न्यूक्लियस इसी के अंदर डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड हो रहा है। अगेन क्या होगा, यहाँ पर जो
क्रोमोसोम्स है वो बीच से टूट जाएंगे और जो स्पिंडल फाइबर है वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम को लेके अपने ऑपोजिट पोल में मूव करेगा। एज वी नो यहाँ पर ऐसे ही होता है कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अपने ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट करते हैं। जो क्रोमोसोम है वो बीच से टूट जाएगा और स्पिंडल फाइबर उसको लेके अपने ऑपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। एनाफेज में बेसिकली यही होता है। एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच से टूट जाते हैं और दो सिस्टर क्रोमैटिड जो बीच से डिवाइड हुआ है वो अपने ऑपोजिट पोल में मूव करते हैं। सेम विल गोइंग टू हैपन हियर ऑल्सो। अब आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, ये अपने ऑपोजिट पोल में मूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे हुआ है सेल डिवीजन, तो वापस हम लोग का जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वापस आ जाएगा, न्यूक्लियस वापस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगे। यहाँ पर सेंट्रियोल वापस आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का जो सेल डिवीजन है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पर भी एक सेल डिवाइड होगा, यहाँ पर भी एक सेल डिवाइड होगा और ये दो सेल बन जाएगा और ये दो सेल। दैट मीन्स आफ्टर द टीलोफेज दिस सेल विल गोइंग टू डिवाइड टू, दिस सेल विल गोइंग टू डिवाइड टू, क्योंकि ये अपने ऑपोजिट पोल में मूव कर चुके हैं यहाँ पर एनाफेज में। तो यहाँ पर भी जो सेल है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा और एज अ रिजल्ट हम लोग को मिलते हैं यहाँ पर 4 डिफरेंट सेल्स। तो ये है बेसिकली प्रोसेस आप लोगों का पूरी तरह से प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। टीलोफेज में याद रखना, वंस मोर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, टीलोफेज में वापस मान लो कि ये सेल है, फरो लाइक कंस्ट्रक्शन, बट याद रखना कि यहाँ पर सिंगल नहीं है, यहाँ पर जो सेल है वो डबल है, क्योंकि हाफ हाफ, यानी यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का जो सेल है वो कुछ इस फॉर्म में होगा। न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क वापस आ चुका है, इसका अपना सेंट्रियोल रहेगा, इसका अपना सेंट्रियोल। Here also it has its own centrosome, chromatin network nucleolus, chromatin network nucleolus, and this will going to divide into 4 daughter cell. तो ये है बेसिकली आप लोगों का माइटोसिस सेल डिवीजन। Let me give you a summary once more. How does it take place? Meiosis में सेल डिवीजन जो होता है, यहाँ पर देखो बेसिकली क्या होता है। फर्स्ट जो सेल रहेगा वो प्रोफेज एंटर करेगा, प्रोफेज 1। सेकेंड वो एंटर करेगा एनाफेज 1, देन वो एंटर करेगा टीलोफेज 1, सॉरी यहाँ मेटाफेज 1, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। यहाँ पर वो साइटोकाइनेसिस एंटर करने के बजाय वो क्या करेगा, आप लोगों का प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और यहाँ एंटर करेगा वो टीलोफेज 2। एंड आफ्टर दैट इट विल गोइंग टू ऑकर साइटोकाइनेसिस and a cell will going to divide into 4 daughter cell। सारा प्रोसेस सेम होता है, बट याद रखना कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमैटिड जो सेल होगा, क्रोमोसोम जो 20 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज़ जो क्रोमोसोम होता है वो टीलोफेज में एंटर करता है। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस चलता है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर फिर से बता देते हैं। पहला जो सेल रहेगा वो डिप्लॉयड रहेगा, यानी यहाँ पर जो सेल रहेगा वो डिप्लॉयड होगा और टीलोफेज एंटर करते करते वो हैप्लॉयड हो जाएगा। डिप्लॉयड बनाएगा हैप्लॉयड
और हैप्लॉइड के बाद वो वापस वो नेक्स्ट डिवीजन ऑकर करेगा और ये हैप्लॉइड आप लोगों का 2 हैप्लॉइड क्या करेगा, सेल्स बनाएगा। तो एट द लास्ट अपन को 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं और वो चारों डॉटर सेल्स क्या रहते हैं, हैप्लॉइड। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मियोसिस होता है वो 2 सक्सेसिव डिवीजन में होता है। पहला हो जाएगा आप लोगों का मियोसिस 1 और दूसरा होता है आप लोगों का मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहला रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो 2n था वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर हैप्लॉइड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब हैप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड में ही कन्वर्ट हुआ है। तो दिस इज द एंड ऑफ माय meiosis division. I hope it is clear. If you will going to have any doubt, just ask me. I will repeat it once more. Thank you.